शर्मा बुटीक ओनर फ्रॉम होशियारपुर, आपका वेलकम। इंजीनियर, स्वागत है सर आपका। कितना अच्छा लग रहा है कि हम सब इस एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं। और आज माइंड डिटॉक्स एक ऐसा शब्द है जिसने हम सबको जोड़ा है। गौरव खन्ना सर, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, अर्ली इयर्स ब्रेन ट्रेनर एंड एजुकेटर फ्रॉम अम्बाला, आपका स्वागत है सर। I'm feeling immense pleasure to welcome you all. Can't tell you in words how happy I am in extending my heartiest welcome to you all. I guess the best gift of Corona is these webinars, through which, staying miles apart from each other, we get connected at a single platform. And what a beautiful platform on which we all are here. A powerful 3 days workshop by Mind Mentors. More and more people are joining us. It's so nice to see that we are 41 here, 42 rather. Thank you, Swati, for seconding my opinion. Akashji, working in IT industry from Hoshiarpur, I welcome you. Jyoti Singh, immense pleasure in saying a word of welcome to you. Jyoti Singh from Faridabad, she has just brought the fresh air to the group with her bewitching smile, I must say. There is a message from Dr. Sween that we are set to start at 6:30 dot, but people are joining so fast, so let's wait just for 2 more minutes. Sure, Sween ma'am, sure. And thanks for giving us time to get introduced to each other. It's actually so nice. Thank you, Jyoti. Thank you so much. We are 45 right now. And I extend my heartiest welcome to Nidhi from Delhi, creative empowerment coach, parent coach, educator. Wow, Nidhi, glad to see you here. Ji, sure, Sween ma'am. Stage is all yours. And to lead us through this journey, we are blessed to have a phenomenal expert with us today who has been a source of deep inspiration and transformation for many people, including myself. Dr. Sween Seni. She's a distinguished clinical psychologist,
parenting coach, life skills trainer, career strategist, author, and the founder of the Mind Mentors. Based in Hoshiarpur, Punjab, and serving the community since 1991, she has dedicated her life in empowering teens, young adults, and parents through mental wellness and emotional intelligence. Her work has been recognized on global platforms. She has been honored with many prestigious awards. To name a few, Educational Excellence Award for 3 years in a row by none other than Dr. Kiran Bedi, Chetan Bhagat, and Shashi Tharoor. Also, this Real Superwoman Award, Inspirational Social Icon Award, and many more. She is the author of 2 deeply appreciated books, and her third book on mental health is already in the works. For me personally, she's my guide, my therapist, my mentor, and I had the honor of learning under her through CBT training course, and I continue to grow each day through my internship with her. Her presence is powerful, her vibe is uplifting, and her aura is unforgettable. She is and always will be my super guru. Before she begins with the session, I would like to inform you all that ma'am will be sharing some amazing bonus resources with you all at the end, so don't miss on those. And now, with immense gratitude and respect, I invite Dr. Sween Sani ma'am to take over and begin today's transformative session. Hello, good evening everyone, and heartiest welcome to this amazing 3 days awareness workshop on mind detox. Thank you, Swati, my adorable Shiro, for your kind words and this warm introduction. Hope everybody is comfortable. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Thank you, Meenakshi ji, for your magical introduction to all the participants. And definitely, I agree. You're most welcome, ma'am. And it was my pleasure. Thank you. Thank you. So heartiest welcome everyone, and thanks for your patience who joined very well in time, because this is a working day and so many working professionals were supposed to join. That's why we just waited for another 5 to 8 minutes. Apologies for that. So why we are here today? आज हम यहाँ क्यों हैं? हम सब जानते हैं कि अपने आसपास हम जो भी सिनेरियोज आज देख रहे हैं, बहुत कम ऐसे इंसिडेंट मिलते हैं जिन्हें सुन के, जिनके बारे में बात करके, सोच के बारे में बात करके आनंद महसूस हो। वाओ, कितना अच्छा माहौल बन रहा है, कितनी अच्छी सोच की लहर चल रही है। Everywhere we are witnessing aggression, anger, violence, worry, fear, stress, uncertainty, unpredictability. ये भला मानस कोविड तो चला गया, पर पता नहीं कौन सी वायरस छोड़ गया कि हमारे आसपास कुछ ना कुछ ऐसा घटक होता रहता है। और सबसे ज्यादा मेरा मन तब विचलित होता है, परेशान होता है, जब हमारे यंग बच्चों की जिंदगी में हम एडल्ट्स के फैलाए हुए रायते की वजह से इतनी सारी परेशानियां आती हैं। Being a teen and adolescent coach, I keep a very special place for my young generation. And I am always there to listen to their unseen voices, unheard voices, unseen pain. आप भी ये एक्सपीरियंस करते होंगे, घर से ऑफिस जाते हुए, मार्केट जाते हुए, कहीं इधर से उधर कम्यूट करते हुए, कि जब भी हम लोगों को देखते हैं तो कुछ इस तरह का सिनेरियो दिखता है जैसे इंसान नहीं, एक चिंता चल रही है। हमारे आसपास हर एज और कैटेगरी का इंसान कहीं खोया, कहीं बुझा, और कहीं अपनी ही थॉट्स में परेशान है। जैसे कोई अपने घर को मिस कर रहा है, कोई जॉब से निकाल दिया गया है, किसी का रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया है, हो सकता है कोई हॉस्पिटल जा रहा हो, उसका अपना लव्ड वन बहुत सीरियस हालत में हो। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, कुछ लोगों के सपने टूट रहे हैं, कुछ लोगों के जो उम्मीदें हैं वो बिखरी हुई हैं। और ऐसे में
एक अलग तरह का तनाव, एक अलग तरह का सूनापन, एक अलग तरह की उदासी या एक अलग तरह का गुस्सा आज अलग अलग मनों में घर कर रहा है। कुछ लोग उसे अपने मूड स्विंग्स और बिहेवियर से दिखा भी पा रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रेटेजीज ऑप्ट कर रहे हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स, अदर अनयूजुअल बिहेवियर्स। कुछ लोगों को घर से, फ्रेंड से, कोचेस से, मेंटोर से, अपने टीचर से कोई सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग मिल रही है शायद, और कुछ अपनी मेंटल रेजिलियंस से उन्हें हैंडल कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हमारे आसपास हैं जो साइलेंस में स्ट्रगल कर रहे हैं। दे आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग विद देयर चैलेंजेस साइलेंटली। दे आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट, क्या करें, और अगर करने भी जा रहे हैं तो वो चीजें वर्कआउट नहीं हो रही। पीपल आर टॉकिंग टू चैट जीपीटी, वो एक ऐप से हेल्प ले रहे हैं, मैं अपनी जिंदगी की परेशानियां कैसे सुलझाऊं। और बहुत सारे यंग बच्चे सुसाइड्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब वो चैट जीपीटी से पूछते हैं आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड, आई एम फीलिंग यूजलेस, आई एम फीलिंग वर्थलेस, मैं जीना नहीं चाहता या जीना नहीं चाहती, तो चैट जीपीटी कहती है ओके, गो एंड डाई, एंड दे फॉलो द इंस्ट्रक्शन। इस मशीन और डिजिटल युग में जहां हम वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस के लिए भी एक सोशल प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल मीडियम पे डिपेंडेंट हो गए हैं, ऐसे ही अपनी जिंदगी के फैसले भी हम डिजिटल ऐप से पूछ पूछ के कर रहे हैं। आई होप यू ऑल आर एग्री। Just because right help at the right time is not available, or sometimes families, they are not able to understand that our family member is needing help, and so many times if they are approaching help to the person, they are not provided appropriate strategies or guidance. I'm sorry to say, पर मेरे पास यंगस्टर्स जब आते हैं 14 to 21 की एज में, 8 to 14 की एज में, with anxiety, with depression, with so many non-suicidal self-harm tendencies, तो जब मैं उनसे पूछती हूँ बेटा इतने अच्छे स्कूल्स में हो, हर स्कूल में आजकल काउंसलर्स हैं, स्कूल में आपकी बुली हो रही है, अगर आपको पढ़ाई का प्रेशर फील हो रहा है, why you don't go to the counselor's rooms? So I always hear very pathetic facts. बच्चे काउंसलर्स पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने आसपास के एडल्ट्स पे ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। या तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, या उन्हें बुली किया जाता है, या फिर उनकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं रखी जाती। एंड पेरेंट्स, अनफॉर्चुनेटली टुडे पेरेंट्स आर हाईली एजुकेटेड, एम्पावर्ड, अवेयर, स्टिल वो वही कहते हैं हमने तो क्या कुछ नहीं सहा, हमने तो इतना कुछ सहा, तुम्हें तो सब कुछ मिल रहा है। पेरेंट्स की अपनी परेशानियां हैं, क्योंकि उनकी नर्चरिंग से ज्यादा सोशल एनवायरनमेंट, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बच्चों पे आ रहा है। बच्चे इंफॉर्मेशन ओवरलोड से इतने ज्यादा घिरे हुए हैं, उनका एक्सपोजर हम एडल्ट से ज्यादा है। सो वी आर फेलिंग समवेयर टू कैच दैट स्पीड। अगर आप मेरी इन सब बातों से एग्री करते हैं तो एजी लिख दीजिए। अगर किसी को लगता है कि मैं तो बहुत ज्यादा ब्ला 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 बोल रही हूं तो नो जी लिख दीजिए, पर कुछ लिख दीजिए जल्दी, ताकि मुझे पता चले कि आपकी सांसें चल रही हैं, आप जिंदा हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, मुझे भी समझ पा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात। सो आप देखिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आकाश जी आपने एग्री और रिलेटेबल भी बोला, बिकॉज एक्चुअली दिस इज अ फैक्ट। 35 ईयर्स से मैं काउंसलिंग के फील्ड में हूं, और पिछले 15 साल से डेडिकेटेड टू मेंटल हेल्थ ओनली, चाहे वो ट्रेनिंग है, चाहे वो थेरेपी है और काउंसलिंग है। और इस 15 साल में इतना फास्ट डिटीरियोरेशन हमने देखा है मेंटल हेल्थ में, इन ऑल एजेस, ऑल कैटेगरीज, ऑल डेमोग्राफिक रीजन्स। और जितनी जितनी एडवांसमेंट और जितनी फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, उतना ही क्राइसिस भी बढ़ता जा रहा है, just because of right help, lack of right people in this industry.
इसीलिए माइंड मेंटर्स ने ये जो इतनी नेगेटिव सेल्फ टॉक, इतना सारा शोर, इतना सारा कंफ्यूजन, इतना सारा डिस्ट्रस्ट चल रहा है, ना सिस्टम पे विश्वास है, ना पुलिस पे, ना ही नेबर्स पे भरोसा किया जा सकता है, ना ही कजन्स पे। पार्क में बच्चों को भेज नहीं सकते, घर पे अकेला छोड़ नहीं सकते, जॉब हम छोड़ नहीं सकते, क्या करें? इसीलिए माइंड मेंटर्स की ये कोशिश है कि हम इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करें इन सोसाइटी, इन कम्युनिटी, इन स्कूल्स, इन यूनिवर्सिटीज, जिसमें हम सबको सेल्फ हेल्प के लिए प्रिपेयर कर सकें। कोई भी कम से कम इतना अवेयर, इतना एम्पावर्ड हो जाए कि जब भी जिंदगी में कंफ्यूजन, कंफ्लिक्ट, चैलेंज, सेटबैक आए तो वो अपने आप को एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए संभाल सके। अगर प्रोफेशनली ना सही, फर्स्ट एड, मेंटल हेल्थ एम्बेसडर्स फर्स्ट एड तो दे सके जब तक राइट हेल्प ना मिले। और मुझे बहुत खुशी है कि आप इस मिशन में हमारे साथ जुड़े। मैं चाहती हूँ हमारी आज की इस डिस्कशन को और जाके अपनी आवाज बना के लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज हर एक छोटा और बड़ा इंसान, दे आर fully equipped with irrational, illogical, automatic negative thoughts. वो किसी की गलती नहीं है, कोई ग्रोसरी स्टोर से जाके नहीं खरीद रहा नेगेटिव थॉट्स, कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर रहा, ना ही ब्लिंकिट से मंगा रहा है। जितने भी इवेंट, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस हमारे आसपास हो रहे हैं, उससे ऑटोमेटिकली निराशा, चिंता, कंफ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ ट्रस्ट, ये हम सब बात डिस्कस कर चुके हैं। तो उससे ये सारा नेगेटिव सेल्फ टॉक आना बड़ा जेन्युइन और बहुत ही कॉमन है, ऑब्वियस है। सो जब ये नेगेटिव सेल्फ टॉक किसी भी एक इंसान को घेरती है, तो साइकोलॉजी का एक फैक्ट है, whenever we are in distress, whenever we are facing any kind of negative scenario in our environment, maybe family, maybe society, maybe school, maybe college, maybe at workplace, then our brain starts thinking negative in all situations. घर की प्रॉब्लम ऑफिस जाके भी बहुत बुरा लगता है। वहां जाके अगर घर पे कोई झगड़ा चल रहा है और ऑफिस में जाके बॉस ने किसी काम में नेगेटिव फीडबैक दे दिया, इंसान सबसे पहले यही सोचता है, माई बॉस हेट्स मी, शी इज बाइस्ड, वो मेरे से चिढ़ती हैं, वो फेवर किसी और की करती हैं, शी इज नॉट फेयर, दैट्स व्हाई शी इज गिविंग मी सो मच वर्कलोड। और फिर मेरे से गलतियां होती हैं और फिर वो मेरी गलतियां पकड़ती हैं। और जो बंदा ऑफिस से तड़पा हुआ, चिड़ा हुआ जाता है, वो फ्रेंड्स की गेट टुगेदर में खोया खोया, उदास उदास, परेशान है, और उसको खुद को लग रहा है, आई एम सो मच आउट इन दिस क्राउड, आई एम नॉट इन्वॉल्व, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। वहां से भी वो उलझा उलझा सा घर वापस आता है। और अगर वो फॉरेन में रहने वाला स्टूडेंट है, तो ना तो कोई फैमिली सपोर्ट, इतना इमोशनल ओवरवेल्म, इतना करियर का स्ट्रगल, उतना पढ़ाई का स्ट्रगल, उतना अर्न करने का स्ट्रगल, ऊपर से पूरे वीक का काम फैला हुआ है, एंड द चाइल्ड इज इन दैट माइंडसेट, आई कांट हैंडल दिस। जबकि वो रोजमर्रा करने वाला काम था और वो पहले से ठीक से कर रहा था, बट वन नेगेटिव इंसिडेंट, इट क्रिएट्स अदर नेगेटिव डॉट्स, और वो इंसान ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बिना सोचे समझे उस नेगेटिव लूप में ट्रैप होता चला जाता है। और साइकोलॉजी का एक और कंसेप्ट है, एज वी थिंक, एज वी फील, एज वी बिहेव। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम महसूस करने लगते हैं, और वैसे ही हमारे एक्शन ड्रिवन होने लगते हैं। हमारी इमोशन, हमारा फीलिंग हमारे एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। कौन कौन ये एक्सपीरियंस कर चुका है और बिलीव करता है कि यस, देयर इज ए वर्किंग टी साइकिल इनसाइड अस, thoughts leading to emotion, emotion leading to action, and this is a vicious cycle. Yes, yes, yes. Type in the chat box. Yes, yes, yes. Thank you.
So you are at the right place. अगर इंसान सेहत की वजह से परेशान है, फाइनेंशियल क्रंच की वजह से परेशान है, उस परेशानी में, उस माइंडसेट से वो जहां भी जाता है, वहां पे अगर किसी ने किसी से ही बात की है, उसको लगता है ये तो मुझे देख के बातें कर रहे हैं। मान लीजिए उसकी एंट्री ही होती है अपने इंडस्ट्री में, अपने ऑफिस में, अपने केबिन में, और कुलीग्स एक दूसरे से बात करके हंस रहे हैं, एकदम से ऑटोमेटिक थॉट आएगी एक वायरस की तरह, ठा, तेरी चुगली हो रही है, तेरे को जज कर रहे हैं। सो ऑटोमेटिकली वो सोच आते ही, वो इंसान आज सोच के आया था कि सारा वर्कलोड जो बैकलॉग है ना वो मैं खत्म कर दूंगा, पर कैच कर लिया माइंड ने और फिर उसे वीव करना शुरू किया। जैसे वो बुनती बुनते हैं ना, एक घर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे ही दिमाग बहुत सारे स्पाइरल ऑफ थॉट्स क्रिएट करने लगता है, और सारा जो प्लान होता है अपना काम खत्म करने का, वो धरा का धरा रह जाता है। द पर्सन इज सिटिंग ऑन द चेयर, files are open, and he or she is thinking about that gossip. अच्छा कल ये बात हुई थी, शायद ये वो डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा मैंने इस बारे में प्रमोद को कुछ बोला था, प्रमोद ने विनोद को बोल दिया होगा कुछ, और विनोद अब आकाश को बता रहा है। फिर उसके बाद कोई पिछले और हफ्ते की कोई इंसिडेंट याद आ जाएगा, और इसी उधेड़ बुन में अंदर ही अंदर नर्वसनेस हो रही है, ड्रेन हो रही है एनर्जी, इमोशन इतने ओवरवेलम हो गए हैं, दिमाग काम करना बंद कर गया। ऊपर से बॉस का मैसेज आया है, पीएन आके बोलता है आपको सर ने बुलाया है। अरे एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा। काम कुछ तैयार भी है, फीडबैक अच्छी दे भी सकते हैं, लेकिन नर्वसनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अपना ही इनर थॉट साइकिल इतना सीवियर है कि वहां जाके बोलना कुछ था, बॉस के सामने बोल कुछ और हो गया। इसको बोलते हैं ब्रेन फॉग। जैसे सर्दियों की धुंध में हमें वही सड़क जाते हुए धूप में तो वही क्लैरिटी से नजर आ रही थी, और हमने एक रास्ता 45 मिनट्स में कवर कर लिया, आते हुए हमें घर वापस धुंध मिली, तो वही 45 मिनट्स का रास्ता 2.5 घंटे में भी नहीं पूरा हुआ, और फिर हमें ना दाएं दिख रहा है ना बाएं दिख रहा है, सेम सड़क, सेम रास्ता, सेम नजारे, लेकिन धुंध है, क्लैरिटी नहीं है। ऐसे ही जब नेगेटिव थॉट्स हमें, हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को इक्विप करती हैं, तो हमारा इंटेलिजेंट ब्रेन काम करना बंद कर देता है, वो स्टक हो जाता है उस लूप में, और फिर परेशानियां एक के बाद एक के बाद एक के बाद। बॉस ने डांट मारी, कुलीग्स पे ऑलरेडी चिढ़ मची हुई है, घर गए, छोटी सी बिटिया है इतनी प्यारी, भागी भागी आती है, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा घूमी कराओ, बाइक पे सैर कराओ। मम्मी बोलती थी जब पापा आएंगे तब घूमने जाएंगे। बड़ा चांटा मारा उसको, 2 मिनट चैन मत लेने देना। नाउ दिस इज एन एक्शन। क्या सोचा, क्या फील किया, और ये एक्शन जो इंटेंशनल नहीं था, बिल्कुल भी ऐसी सोच या नियत नहीं थी कि छोटी बच्ची को जाके स्लैप करना है, बट कर हो गया। एंड नाउ वाइफ इज जजिंग हस्बैंड ऑन दिस बिहेवियर। तुम्हें तो बेटा ही चाहिए था, मुझे पहले से पता था, तुम्हारे खानदान की रिवायत ही यही है, लड़कियां देखते ही तुम्हें चिढ़ मचती है, इसलिए तुमसे बेटी भी सहार नहीं होती। नो कनेक्शन एट ऑल, बट हाउ माई एक्शन is giving another thought to any other person according to their own assumptions. And then she is feeling so disheartened, so disappointed, so irritated कि उसने बहुत अच्छी चाय बनाई थी और कप पटक के चली गई। अब इधर से बंदा और झुंझला गया, अब यहाँ से बेटियों वाली क्या बात आ गई, कभी पूछा भी है मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है? और फिर आगे की कहानी तो आपको पता है कहां से कहां जा सकती है। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम करंट मुद्दे पे जब भी डिस्कस करने लगते हैं तो करंट पे रहते ही नहीं, ना जाने कौन सा पास्ट गड़े मुर्दे उखाड़ लाते हैं। कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी कम्युनिकेशन हो, इसके पीछे भी ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट है, जो हम सीबीटी प्रोग्राम में बड़े अच्छे से डिस्कस करते हैं। सो कमिंग बैक टू टी साइकिल, इसीलिए
आज हम यहाँ हैं कि जैसे ही अनहेल्दी, अनफेवरेबल, irrational, illogical, irrelevant, yet uncontrollable and believable thought आए, इससे पहले कि वो मेरी फीलिंग बन जाए, मेरे पूरे तन मन का आवरण की तरह ओढ़ ले और फिर मेरा सारा बिहेवियर और एक्शन उससे इन्फ्लुएंस हो, we need to understand and learn how to check, catch, challenge and change my negative thought. Because अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इस लूप में धीरे धीरे छोटे छोटे फियर, छोटी छोटी वरीज, छोटी छोटे स्ट्रेस, फिर वो एक्यूमुलेट होके स्ट्रेस जो है वो एंजाइटी बनता है, एंजाइटी एक्यूमुलेट होके पैनिक बनती है, एक से ज्यादा बार पैनिक हो गया तो पैनिक अटैक डिसऑर्डर हो गया। एंड देन और न जाने कितने रिश्तेदार अनइनवाइटेड आ जाते हैं। वो जिसको बोलते हैं ना ओसीडी, किसी को बोलते हैं मूड स्विंग्स, किसी को बोलते हैं बॉडी पेन, किसी को पीसीओएस हो रहा है, किसी को पीसीओडी हो रहा है, छोटे छोटे फियर फोबियाज में चेंज हो रहे हैं, और छोटे छोटे डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस नाउ दे आर टर्निंग इनटू साइकोटिक डिसऑर्डर एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। कोविड तक हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया के केसेस आते थे मोस्टली 25-30 प्लस एज ग्रुप में, मैक्सिमम 50 प्लस के एज में। और अब अगर मैं आपको रेशियो बताऊं, पिछले 1.5-2 साल में 14 to 16 इयर्स की एज में स्किज़ोफ्रेनिया के केसेस हमारे पास आ रहे हैं। दैट इज द लेवल ऑफ डिटीरियोरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। और हम कर क्या रहे हैं उसके लिए? सब अपने अपने लेवल पे सोच के देखें, अपने एरिया, अपना घर, अपना वर्क प्लेस, वट एवर यू आर डूइंग, मेंटल हेल्थ को लेके हम कितने जागरूक, सजग और क्रिएटिव हैं, अटेंटिव हैं, क्विक हैं, कितना जल्दी एक्सप्रेस करते हैं, कितना जल्दी हेल्प सीख करते हैं, और कितनी देर उसे सप्रेस करके फेक और प्रिटेंड करते हैं। अगर तो आप क्विकली रिएक्ट करते हो, बड़ी जल्दी हेल्प सीख करते हो और सजेस्ट भी करते हो हेल्प अपने नियर एंड डियर वंस को, तब तो टाइप करेंगे वाई। अगर आपको लगता है कि नहीं, सप्रेस होता है, प्रिटेंडिंग होता है, फेकिंग होता है, बड़ा मुश्किल है यार किसी को जाके बताना, तो एन टाइप करेंगे। देखिए रेशो क्या है, ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, वाई और एन। यस, थैंक यू पूर्वा जी, थैंक यू मेघा। समटाइम्स एन, यस। सो ये जो वाई भी है ना, मैं सच में बताऊं, अब तक दूसरों को कहने के लिए और बहुत बार एक बहुत ही सेफ स्पेस में बात करने तक रह जाता है। आई नो एवरीबॉडी इज नॉट सो मच रिलक्टेंट, वी आर अवेयर एंड एजुकेटेड पीपल, और आज तो हमारे यहाँ बहुत सारे कोचेज और काउंसलर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, दे आर अवेयर। पर बहुत बार जानते समझते भी हम इग्नोरेंट हो जाते हैं। हम बात करते हैं इसके बारे में, हम स्टेजेस पे, सेमिनार्स में बोलते हैं, अपना वक्त आते ही हम थोड़ा सा फिर भी रिलक्टेंट हो जाते हैं। कोशिश करते हैं खुद से कुछ कर लें, कोशिश करते हैं कुछ पढ़ लें, कोशिश करते हैं थोड़ा सा यूट्यूब पे कुछ देख लें, राइट हेल्प तक जाने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है। पर कोई बात नहीं, आज हम यहाँ इसीलिए हैं कि कुछ मेंटल फॉग जो है, ब्रेन फॉग, वो क्लियर हो जाए, तो फिर हम खुद के साथ साथ दूसरों को भी टाइमली हेल्प दे पाए। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, I would like to take answers from people sitting here. What do you understand by mental health? Very simple word koi, like, is it absence of disorders or something else?
What is mental health? Please type in chat box जो भी क्वेश्चन, बिना चैट जीपीटी के और बिना किसी साइकोलॉजिकल डेफिनेशन के, आपको क्या लगता है? पीस ऑफ माइंड, स्ट्रेस फ्री, मेंटल हेल्थ क्या है? गुड मेंटल हेल्थ, अच्छी मेंटल हेल्थ। वेरी गुड। गुड गुड गुड, वेरी गुड। सो मीनाक्षी मेनन जी, आप पढ़ पाएंगे प्लीज? आई विल अप्रिशिएट, पीपल लव टू हियर योर वॉइस। मीनाक्षी मैम आप हैं? Okay, no worries. We have other Meenakshi. magical Meenakshi in the group. जी मैं पढ़ूं? Yes, please. So we have happy mind with positive feeling, peace, living simply, calmly, having a balanced perspective of every situation, peace of mind, positive thinking, relaxed mind, feeling good, staying calm and alert in your daily routine, psychological, emotional, physical well-being, accepting the changes, peace of mind, positive and controlled thoughts, living in the present with a smile, a good social adjustment. When I am very efficient, I feel I am in good space, good sleep, negative thoughts को control करके अपने behavior ठीक रखना, emotionally independent होना, to adapt the situation cautiously, to handle situations with positive thinking, knowing how to cope जब कोई मुश्किल आ जाए. क्या बात? जब कोई मुश्किल आ जाए तुम देना साथ मेरा. When mind is at peace with itself, with the ups and downs both. Very good. Great responses. They are flowing so fast. It was difficult to catch all of them, but No worries. awesome. That's Very good. बहुत बढ़िया. Psychological, emotional, physical well-being, Nidhi Singh. And accept the changes. Wow. Peace of mind, positive and controlled thoughts. Live in present. So, you know, everybody is, most of the time it is saying, when situation is in my control, when I am able to do my best efficiently, whenever I am at peace with myself. बट क्या जिंदगी हमेशा ये अपॉर्चुनिटी देती है? क्या जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से चलती है? कभी भी पास्ट प्रेजेंट में नहीं रहता, और प्रेजेंट में हम फ्यूचर देख नहीं पाते. बट इंटरेस्टिंगली, मोस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, they are already traveling most of the time to the past, or they are assuming their future. That is also another psychological fact. ये हुआ, वो छूट गया, वो नहीं मिला, उसने मेरे साथ ऐसा किया, या फिर क्या होगा, ये ना हुआ तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा. Why me and what if? जितने भी लोगों से हम जनरली बात करते हैं, whenever they start losing their peace of mind, it is always just because of this equation, what if, why me. तो जैसे ही हमारी ये मेंटल थॉट्स नेगेटिव सिनेरियो में जाने लगती हैं, एक लूप बनने लगता है, एक सेंस ऑफ इमोशनल फ्लक्स, रिफ्लक्स जिसको बोलते हैं, वो चलने लगता है. Is there anybody who has done CBT with us? Good. Jyoti, are you there? Hello. Yes, Jyoti is there, but not available probably. Okay, so who would like to
टेल दैट ब्रेन वर्सेस माइंड वाला कंसेप्ट? एनीबॉडी? प्रियंका, वाइड स्माइल. ओके, लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन. जब भी ह्यूमन बॉडी में हम लोग, आप अब हैंड रेज कर सकते हैं आंसर करने के लिए, टाइपिंग बहुत हो गई. Whenever we observe any human body diagram in hospital or in school textbooks, and you start labeling human body diagram, कहां से शुरू करते हैं लेबल करना? फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या लेबल करते हैं? नहीं, अब तो मैं नॉन सीबीटी पार्टिसिपेंट से ही पूछूंगी. योर चांस गॉन. यस, दिलरूप बोलिए. अनम्यूट करना पड़ेगा दिलरूप. यस, हेड. यस, एक्सटर्नल पार्ट इज हेड. हेड और उसके बाद आईज, फोरहेड, नोज, व्हाटएवर, ईयर्स. यस पूर्वा मैम, अगर हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स को लेबल करना शुरू करें तो हम कहां से शुरू करते हैं? टॉप से. व्हाट वी कैन लेबल? ब्रेन. ब्रेन है ना. या. और उसके बाद फिर आती है हमारी बाकी इंटरनल ऑर्गन्स की बारी. हु इज बॉस ऑफ आवर बॉडी पूर्वा मैम? Our mind. आओ, सच्ची, घर पे कौन बॉस होता है? हु इज द हेड ऑफ द फैमिली? That's well, generally it's the earning male member of the family is the head of the family. ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना? Yeah, it's a very आंसर tricky भी, question. हाँ आंसर भी ट्रिकी है. जैसे हम जनरली यही नोशन मान के चलते हैं, जब भी किसी से पूछे हु इज द हेड ऑफ द फैमिली, दे से डैड इज हेड ऑफ द फैमिली. ओके, मॉम कुछ नहीं करती? बच्चे मेरे पास आते हैं तो ये मॉम करती हैं, सब कुछ करती हैं. तो धीरे धीरे मॉम का फंक्शन पूछने की कोशिश करते हैं तो सारे फंक्शन लगता है मम्मी ही करती हैं. बट स्टिल डैड इज हेड ऑफ द फैमिली, है ना? अब यही हमें नर्चर किया गया, हमारी कंडीशनिंग ऐसी है. तो मैं कहती हूँ ठीक है भैया, डैड इज हेड ऑफ द फैमिली. एंड यस, भावना मैम स्टिल रिमेम्बर्स के मॉम इज नेक ऑफ द फैमिली. हमेशा डैड 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 करते हैं, मम्मी का नाम कई बार कम आता है. लेकिन इसी तरह से जब भी हम बात कर रहे हैं, हमें पढ़ाया क्या गया है कि ब्रेन इज बॉस ऑफ आवर बॉडी, और ब्रेन एक एग्जीक्यूशन फोर्स है जो सारे एक्शंस को कंट्रोल, मैनेज, ऑर्गेनाइज करता है. यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रिकी मोड है, ट्विस्ट है. जैसे जब भी बच्चे मम्मी से परमिशन मांगते हैं, मम्मी नाइट आउट के लिए जाना है, जाने दो ना प्लीज, तो मम्मी बोलती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, पापा से पूछ लो. और जब पापा से पूछने जाते हैं बच्चे, तो कर्टन के पीछे से मम्मी बोलती है नो बोलना, यस नहीं बोलना. इंस्ट्रक्शन इज गिवन बाय मॉम एंड एग्जीक्यूटेड बाय डैड. इसी तरह हमारी बॉडी में भी जो एक बॉस है, ब्रेन है, ये दिखता है कि बॉस है और ये एग्जीक्यूट कर रहा है, इसको भी इंस्ट्रक्शंस कहीं और से आ रही हैं. एंड पूर्वा मैम सेड राइटली, इट इज माइंड. पर बड़े इंटरेस्ट की बात है, वो हैंड रेज करे जिसने कभी भी अपनी साइंस की नोटबुक में या ड्राइंग शीट पे ह्यूमन बॉडी में कहीं माइंड लेबल किया हो या लेबल किया हुआ देखा हो. देखा है कभी? किसी ने बताया कि बेटा ये माइंड होता है, इसको लेबल करो? ब्रेन के बारे में भर भर के पढ़ाया गया हमें, इसीलिए तो माइंड मैनेजमेंट हो नहीं पा रही. और जब हम बात करते हैं, मैंने आते ही बोला प्लीज डोंट माइंड, हमने 5 मिनट लेट शुरू किया क्योंकि कुछ लोग लेट ज्वाइन कर रहे थे. अभी मैं प्रकृति मैम को बोलूं, मैम खो गए कहीं? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? या फिर आपका आपका बच्चा, नहीं मैं तो मजाक कर रही हूँ, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. आपका बच्चा आपका हाथ छुड़ा के भरी सड़क पे ट्रैफिक के बीच में से निकल के जाता है चिप्स लेने, तो आप जाके उसे चांटा लगाते हो. आर यू आउट ऑफ योर माइंड? यू कुड नॉट सी ट्रक कमिंग टू यू?
कभी नहीं हमने बोला कि यार मैं तो मजाक कर रही थी, प्लीज ब्रेन मत करना, आर यू आउट ऑफ योर ब्रेन, या मेरे बैक ऑफ ब्रेन कुछ चल रहा है. वी ऑलवेज यूज वन सॉलिड, वन ओनली वर्ड, माइंड. और इस माइंड के बारे में हमें आज तक कभी एजुकेट ही नहीं किया गया. हमेशा आईक्यू की बात होती है, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन ही ब्रेन से कराया गया. क्यों हम पेरेंट्स और एजुकेटर्स को ब्लेम करें कि वो सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस की, परफॉर्मेंस की, कैपेसिटी उसकी बात करते हैं. इमोशन को कभी प्राइमरी रखा ही नहीं गया, माइंड को कभी वो जगह दी ही नहीं गई. और जैसे बहुत सारी फीमेल्स ने फेमिनिज्म का बीड़ा उठाया है कि हम बताएंगे हम क्या हैं, ऐसे ही हमने बीड़ा उठाया, हम बताएंगे माइंड क्या है. रेडी? ग्रेट. So whenever we talk about mind is such a beautiful thing because it is emotional brain. रहता कहाँ है? Inside the brain only. वो एक काम पीसफुल मंदिर जैसा कॉर्नर जिसमें हमेशा हमें पीस चाहिए होती है, लेकिन हालात, लोग, घटनाएं घंटियां बजाते ही रहते हैं. और जैसे ही एनवायरनमेंट से हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, वो इंफॉर्मेशन ब्रेन रिसीव नहीं करता. ब्रेन बैक सीटेड है, बॉस है, उसने अपने बंदे रखे हुए काम करने के लिए. जैसे डैड ऑफिस से आते ही बैग रखते हैं, मम्मी अभी ऑफिस से आई नहीं है और वो पहले ही वेट कर रहे हैं, आएगी तो चाय बनाएगी. ब्रेन भी बैठे हैं बॉस. माइंड का काम है एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना यूजिंग 5 सेंस ऑर्गन्स. देख के, सुन के, टच करके, टेस्ट करके, स्मेल करके, और वो इंफॉर्मेशन एज ए डेटा ट्रांसफर करना फर्दर. ओके. माइंड के बारे में अगर हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, अभी आप सब लोग, कितने लोग हैं रूम में? 63 इंक्लूडिंग मी. 62 लोग मेरी बात सुन रहे हैं, इधर वीडियो ऑन और ऑफ. विच स्टेट ऑफ माइंड? यस प्रियंका. कॉन्शियस माइंड. हाँ जी, कॉन्शियस माइंड. वेरी राइट. क्यूरियस, अटेंटिव, alert, conscious, eager to learn. Beautiful. So we all are very alert and active, and our mind, whichever is active at the present, which is instrumental at the moment, as Priyanka said, it is conscious state of mind. So our conscious mind is receiving the information and data, and it is shifting to another part. What is the second department of mind जो रात को एक्टिव होता है जब हम सो रहे होते हैं? Subconscious mind. That is Subconscious mind. Yeah, semi-conscious or subconscious. Why? Because we are very busy in sleeping, deep in our sleep, but still कोई बाहर बेल बजाता है, कोई आवाज आती है, कोई मॉस्किटो बाइट करता है, हमें एकदम से रियलाइज होता है. हम उठे ना उठे, दैट इज सेकंड थिंग. बट हमारी हाफ सेंसेस, दे आर लिटिल बिट semi-conscious. And when somebody is lying in the ICU, completely unaware and disconnected from the environment, नर्स इंजेक्शन लगा रही है कि उंगली काट रही है या डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, कुछ नहीं पता, बट स्टिल वी आर लिविंग, वी आर लाइव. दैट इज अनकॉन्शियस. तो कॉन्शियस माइंड का काम है हर वक्त अलर्ट, अवेयर रह के आसपास के माहौल से इंफॉर्मेशन रिसीव करना. मान लीजिए अभी अभी एक बच्चे की हमने न्यूज सुनी, उसकी पहले जो OCR शीट थी गलत आ गई, कितना हंगामा हुआ. अब उसको फिजिक्स की सही वाली शीट मिल गई, है ना. अब वो जो पहले आया था इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन वाज वेरी डिस्टर्बिंग, डिसहार्टन, डिसअपॉइंटिंग, नेगेटिव. तो वो इंफॉर्मेशन जैसे ही उसने शीट देखी,
आईज सेंस ऑर्गन्स के थ्रू वो इंफॉर्मेशन अंदर गई माइंड में, सबकॉन्शियस ने उसको इमोशन में प्रोसेस किया। जैसे आप कोई भी प्रोग्राम फीड करते हो कंप्यूटर में कीबोर्ड से, रैम में जाता है, प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है और वो फिर आउटपुट दिखाता है। ऐसे ही जैसे ही इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में जाती है, सबकॉन्शियस उसे इमोशन में प्रोसेस करता है। इमोशन इट ट्रेवल्स एज ए सिग्नल टू ब्रेन। मान लीजिए ये ब्रेन है, ये माइंड है, ये ब्रेन है। अब ब्रेन को वो इंफॉर्मेशन गई, अगर तो इंफॉर्मेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अनहेल्दी है, टॉक्सिक है, तो हम कैसा फील करते हैं? बैड, सैड, स्ट्रेस्ड, फ्यूरियस, नर्वस, है ना? यस, लो, वेरी गुड, रेस्टलेस, मिजरेबल। और फिर वो इमोशन एज ए सिग्नल, मैसेज। Let me tell you, emotions are not behaviors. Emotions are signals to be sent to brain. और ब्रेन उसे जैसे ही कैच करता है अपने वाईफाई न्यूरॉन्स के थ्रू, इसके अंदर एक ऑटोमेटिक फैक्ट्री है जिसकी मशीनें चलने लगती हैं, और इस ब्रेन फैक्ट्री में कुछ बन रहा है 24 घंटे 7 दिन। यस कामेश्वरी जी, कैन यू टेल मी कि क्या बनता है ब्रेन में 24 घंटे 7 दिन लगातार? ब्रेन फैक्ट्री में क्या बनता है? Anybody else? Yes, Himanshi. Hormones. Yes. गौरव जी, पूजा जी, these are not thoughts actually, sorry, these are the practical बात कर रहे हैं हम, साइंटिफिक। तो इस ब्रेन फैक्ट्री में 24/7 हॉर्मोन्स बनते हैं, ब्रेन केमिकल्स और हॉर्मोन्स। और ये हॉर्मोन्स कैसे होंगे? हेल्दी, पॉजिटिव, हैप्पी होंगे या नेगेटिव, टॉक्सिक, अनहेल्दी होंगे? ये डिपेंड करता है कि कैसी इंफॉर्मेशन एज ए डाटा रिसीव हुई, क्या प्रोसेस करके इमोशन आया, और वो इमोशन यहाँ पहुंची। तो फोरमैन को जैसे बॉस का ऑर्डर आता है, बाबूजी ने बोला है मूड खराब है, आज स्ट्रेस हॉर्मोन्स बनेंगे, ऑटोमेटिक है, अंदर ये प्रोसेस चल रहा है, हमें समझ में नहीं आता, इसीलिए आपको समझाना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम और इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ चलें, रूट कॉज तो पता चले, कारण पता चलेगा तभी हम निवारण कर पाएंगे। और अब ये हॉर्मोन्स ब्लड में कंज्यूम होके जाते हैं ब्रेन के बाकी डिपार्टमेंट्स को। तो ब्रेन के पास बहुत सारा स्टाफ है, क्योंकि उसने इतने सारे काम करने होते हैं, लॉजिकल डिसीजन, एनालिटिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, कैलकुलेशंस, सम सॉल्व करने हैं, जमा घटा करना है, याद रखना है, फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स को ब्लड जो है वो फूड सप्लाई करता है इन द फॉर्म ऑफ दोज हॉर्मोन्स। अब अगर आप बहुत ही पोटेंशियल वाले, कैपेबल हैं, वो बच्चा जिसने फिजिक्स का एग्जाम दिया, उसने बहुत अच्छे से एग्जाम दिया था, वो इंटेलिजेंट था, कैपेबल था, पर जैसे ही वो इंफॉर्मेशन आई कि वो फेल कर गया या उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, immediately data was negative, unhealthy, toxic, emotions were very, very low, very frustrating, very disappointing, disheartening. तो ब्रेन हॉर्मोन्स बने टॉक्सिक, अनहेल्दी, सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हवा हो जाता है। इंसान सोच ही नहीं पाता लॉजिकली, रैशनली, पता होता है कि बस मैं फेल हो गया। ऐसे ही हम बहुत सारे लोग किसी भी ऐसी सिचुएशन में अपनी पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पाते। अभी श्रद्धा मैम ने लिखा था, whenever I am at my best, when I am fulfilling all my tasks, then I am feeling at peace. और वो जब नहीं कर पाती हैं तब क्या उनकी किसी कैपेसिटी या पोटेंशियल में कमतरी हो जाती है? Somewhere there is some negative environment, negative incident, negative thought, any stressful incident, any stressful memory,
वो आती है, हॉर्मोन्स बनाती है, हॉर्मोन्स कवर कर लेते हैं हमारे सारे इन डिपार्टमेंट्स को, और ये डिपार्टमेंट काम करना बंद कर देते हैं। और फिर बचे हुए हॉर्मोन्स को ब्लड लेके जाता है हार्ट में। और हार्ट का क्या रोल है? धक 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 करके क्या करता है हार्ट? ब्लड पंप करता है। ब्लड को पंप करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। और फिर कौन से वाले हॉर्मोन्स जा रहे हैं उस ब्लड में? टॉक्सिक, अनहेल्दी, नेगेटिव। तो बॉडी भी हमेशा ड्रेन्ड, वीक, रेस्टलेस या फिर एंग्शियस फील करती है, क्योंकि उसको डाइट वैसी मिली है। एंड यू ऑल आर इंटेलिजेंट एनफ टू फ्लिप द सिचुएशन एंड टू चेक द सिनेरियो। तो मैं पूछना चाहूंगी यहाँ, किससे पूछें, ऑपोजिट सिनेरियो में क्या होगा? नो हिमांशी, नॉट ऑलवेज यू। यस प्रीति मैम, आप बताएंगे। अब अगर हम ऑपोजिट सिनेरियो कर लेते हैं कि सिचुएशन इज वेरी गुड, गुड न्यूज मिली है, दैविक हैज टॉप्ड द 12th क्लास। ओ माय गॉड, व्हाट ए ग्रेट न्यूज। क्या सिस्टम रहेगा सारा, माइंड में कौन सा डेटा? सबसे पहले तो डबल प्रमोशन हो गया उसका. Yeah. So it will be all opposite. The happy hormones will be sent to brain, Yes. and the same will be circulated to the body, to the heart. So it will be happiness throughout the body. It will be active, energetic, cheerful, happiness, smile, love, laughter. So it will be spread through the heart to the people and the body and the surrounding environment. So it will be all happiness. यस। सो जैसे शुभा जी ने लिखा, नेहा ने लिखा कि यस, ट्रिगर बेस्ड इंफॉर्मेशन आती है, या जब भी कोई हालात अच्छे नहीं होते तो अकॉर्डिंगली ओवर थिंकिंग होता है। और जैसे प्रीति जी ने बताया कि इफ द सिचुएशन इज वेरी पॉजिटिव, वेरी एनकरेजिंग, वेरी हैप्पी, ऑल द इवेंट्स आर गोइंग ऑन सो वेल, श्रद्धा मैम के हर टास्क फुलफिल हो रही है एंड शी इज ऑन क्लाउड 9, तो उनके अंदर इमोशनल जो रेप्लिकेशन है, रिफ्लेक्स ऑफ इमोशंस है, वो भी अच्छा बनेगा। और फिर हम लोग सारा काम बहुत और अच्छे से करेंगे बिकॉज वी हैव रिसीव्ड डोपामिन। हैप्पी एंड हेल्दी हॉर्मोन्स मींस डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन। सो जब स्ट्रेस Serotonin. हार्मोन बनते हैं तो वो स्ट्रेस हार्मोन्स जाके हमें टॉक्सिसिटी देते हैं। ये जो हार्मोनल लोचा है, बहुत साल पहले मुन्ना भाई एमबीबीएस में बताया गया था, वैसे केमिकल लोचा, हार्मोनल लोचा। बट तब हमें लगता है कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है इसीलिए हो रहा है, उसका बाहर के एनवायरनमेंट से क्या कनेक्शन है। और आजकल अगर हम देखें, छोटे छोटे बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर, पहले मदर्स घर पे रहती थी, अब मदर्स के ऊपर काम का प्रेशर। पहले सिर्फ जेंट्स के लिए कंपटीशन होता था टू अर्न वेल एंड टू रन द फैमिली, नाउ द फीमेल इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग। और फिर घर पे आके काम का प्रेशर, ऑफिस में एक अच्छी पोजीशन और कंपटीशन का प्रेशर, बच्चे को कम टाइम मिल रहा है, हेल्दी पेरेंटिंग, पॉजिटिव पेरेंटिंग नहीं हो पा रही है। कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन आसपास इतनी ज्यादा चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हैं, किसको किस किस से बचाएं। और ऐसी सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो जाता है हैप्पी हॉर्मोन्स का टिके रहना। थोड़ी थोड़ी देर में हमारे हॉर्मोन्स जो हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं और फिर से आ जाते हैं हम नेगेटिव सेट ऑफ माइंड में। और धीरे धीरे हमारी मेंटल हेल्थ लगातार एक इवेंट से परेशान होके या फिर सीक्वेंस ऑफ इवेंट से परेशान होके हमारे डेली रूटीन बिहेवियर में चेंज होने लगता है ड्यू टू दिस हार्मोनल लोचा। भूख कम लग रही है या ज्यादा खा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है या उठ नहीं पा रहे हैं, मूड स्विंग्स इतने हो रहे हैं कि एकदम से खुश, एकदम से गुस्सा, एकदम से रोना, एकदम से लड़ाई, और एक तरह का डिप्रेशन, जैसे एक स्टेबल सा डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड चल रहा है। हम कभी पिल्स ले रहे हैं, कभी हम कुछ डिफरेंट डिफरेंट मीडियम कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करके मन को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, माइंडलेस।
स्क्रॉलिंग कर रहे हैं ताकि हमें कहीं से डोपामिन मिले। अनयूजुअल तरीके से हमारे इमोशनल ब्लास्ट हो रहे हैं जहां नहीं होने चाहिए, और तब लगता है हर तरफ अंधेरा है। ये भले ही ना दिखे, पर हर मन के अंदर ये अंधेरा बढ़ रहा है। आप अपने घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनसे अलग अलग बात करना शुरू करिए, हाउ दे आर फीलिंग इनसाइड, और एक हफ्ते की फीलिंग्स का ट्रैक करिए एवरी डे। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ ऑफ डे में इमोशंस कैसे फ्लक्चुएट हुई, क्या क्या हुई, और फिर चेक करिए पैटर्न। डार्क क्लाउड ज्यादा हैं, डाउट के, मे बी, अनसर्टेनिटी, एनी स्ट्रेस, एनी फियर, एनी सप्रेशन और एनी एंगर, और वो ऐसे लगता है कि आई एम लॉस्ट इन द डार्क रूम। देयर इज स्विच फॉर लाइट, बट आई कांट गेट अप एंड स्विच ऑन द लाइट। हम सबको पता है क्या करना है, पर हो नहीं पाता, क्योंकि जब हम ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स के लूप का शिकार हो जाते हैं। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट, व्हाट एन इंटरेस्टिंग फ्रेज। और इसके 3 लेटर्स को आप हाईलाइटेड देख रहे हैं, तो वो बनता है एंड। यूनिवर्स में नेकेड आई से देखे जाने वाला सबसे स्मॉलेस्ट, वीकेस्ट, काइंडेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट कहूंगी मैं, क्रिएचर, और उसके ऑपोजिट हम देख रहे हैं एलिफेंट, ह्यूज, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, हैवी। क्या आप किसी हाथी को चींटी से डरा सकते हो? एक हाथी फॉरेस्ट में चलता है, मोर देन 1000 चींटियों को वो अपने एक पैर के नीचे रौंद देता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। आप एक लिफाफा भर के एंट्स का एलिफेंट की बैक पे छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी जो स्किन है वो इतनी हार्ड है, थॉर्नी है, इचिंग भी नहीं होती, टिकलिंग भी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। किसी को पता है एलिफेंट एंड एंट की स्टोरी? यस कामेश्वरी जी, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 2 दिन और हैं, डोंट वरी। डाइजेशन खराब हो जाएगा, आज ही सब मिल जाएगा तो। यस शुभा मैम, वन एंट अप इन द ट्रंक। अगर वही एक एंट उसके कान में या ट्रंक में स्टिक हो जाए तो क्या होता है? हिमांशी जी, Will be क्या mad. होता है? He will be mad or die. ऐसे नहीं, आप तो सीधे ही पिक्चर खत्म कर दिया आपने। अच्छा, एक अगर ईयर में अगर एंट चली जाए तो he won't be able to remove it, and he will feel so restless, and then he will run here and there and bang himself through against the trees or wall or whatever the thing is there, and slowly he will be mad or he will die because of that ant, and he won't be able to remove this. Just like us, if one negative thought comes in our mind, will destroy, will over, like we overlook all the positive things. So rightly said, Sunita ji, elephant becomes mad. Thank you, Himanshi, for bringing this so beautifully. And yes, Prakriti ji, it will bang its trunk in stress and anxiousness. क्योंकि वो तो ना ऐसे कर सकता है ना ऐसे कर सकता है, हम तो कर सकते हैं, है ना? तो वो इतना रेस्टलेस और हेल्पलेस हो जाता है कि जस्ट स्ट्राइकिंग ट्रंक विद रॉक्स, ट्रीज, ब्रांचेस, फ्लोर, और धीरे धीरे वो अपने आप को हर्ट कर लेता है। और लोगों को, देखने वाले को क्या लगता है, हाथी पागल हो गया। एंड समटाइम्स वो इतना हर्ट कर लेता है कि ही में डाई। अब अगर हम एंट्स को ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स कह रहे हैं जो हमारे माइंड में चलती रहती हैं, तो इनके ऑपोजिट हमारे अंदर पावरफुल एलिफेंट कौन है? यस, इतना सन्नाटा क्यों है? मनदीप जी, वाह,
Manju Janu ma'am, thank you. Yes, it is our brain or mind. So human brain is such an intelligent machine. It has devised so many important things, so many inventions it has done. अब तो चैट जीपीटी, रॉबर्ट्स हमारा रेप्लिका बन गया है. लेकिन एक ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट अगर हमारे माइंड में स्टक हो जाती है, तो कहते हैं ना, वो अटक गई तो समझ लो हमारी सटक गई. And then we get mad, we get stressed, we get overwhelmed. हमारा जो हार्मोनल लोचा है वो सब गड़बड़ हो जाता है. और जैसा अभी मैम पूछ रहे थे, भैया बहुत हो गई प्रॉब्लम, सॉल्यूशन तो बताओ. Here comes the role of CBT. How to crack this cycle, anxious, toxic, vicious cycle of negative thoughts, feelings, and behaviors. Here comes the role of CBT, cognitive behavioral therapy. CBT actually it is widely recognized and effective form of counseling or therapy, जहाँ पे हम ऐसे negative thought patterns को identify करने में help करते हैं after educating people, and then we teach them how to label their emotions, to identify their emotions before they turn into behaviors. Sometimes we work on thought, sometimes we work on behavior. Okay, because इन चारों में से अगर कुछ भी सेट होगा तो हमारा ये साइकिल जो है वो पॉजिटिव हो सकता है फ्रॉम नेगेटिव. Got it? And there are so many other things we can do with CBT, but because time is falling short, so हम लोग काउंसलिंग में CBT को कैसे यूज करते हैं, what is the benefit of CBT in counseling, ये हम कंटिन्यू करेंगे कल. लेकिन क्या एक्चुअली ये बेनिफिशियल होता है? Let's listen to this beautiful Hello video. everyone. Today I'm here to talk about the Level 1 CBT program that I completed with Dr. Sween. I've been blessed to learn from several mentors all across the globe, and each one of them is special. However, the most beautiful experiences that I've had with Dr. Sween are so heart-touching. Her programs are not only the content in the programs is amazing. Her unique style of teaching makes it so profound and deep for us. Like the complex concept of subconscious and the conscious mind was explained with real life example of a day security guard and a night security guard. Excuse me, ma'am, for revealing the content a little bit, because I'm so excited I can't just stop myself. You know, the way she gives examples, they make the concept so applicable and related that, you know, these are not only at the theory base, we actually are fully equipped to use them in our day-to-day life. So thank you, Dr. Sween, for such an amazing program, for being you, the most amazing you. Yes, my request to everyone is, whenever you want to understand the thought, feelings, and the behavior, please learn the CBT. It is one of the easiest tools given by Dr. Sween to not only empower us but also enhance our life, ourselves. Thank you. Thank you. So how does cognitive behavioral therapy work? We will discuss it day 2 session tomorrow with relevant examples and many more learnings. Thank you so much. Any question from today's content, or anybody wants to say something? Thank you so much. Thank you. Anybody wants to share something, say something? Okay, so see you tomorrow. Thank you for being here today. And if anybody has any question, you can put in the WhatsApp group mein, and see you tomorrow at the same time. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Akash. Thank you, Purvaji. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.
Thank you, ma'am. Bye bye.